Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about electric circuit and resistance. What is meant by electric circuit? The path along which electric current flow. That is known as the electric circuit. And what do you mean by resistance? The property of material by the virtue of which it opposes the flow of electric current through it. पर्टिकुलर मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेंगे, राइट तो उसको बोला जाएगा रेजिस्टेंट. लोअर द रेजिस्टेंट ग्रेटर करंट फ्लो. अगर रेजिस्टेंट पर्टिकुलर मटेरियल का कम होगा तो करंट उसमें से ज़्यादा पास होगा, राइट, एंड वाइस वर्सा. Next, today we are going to study about effect of electric current, that is a heating effect of electric current. Resistance can be compared with the force of friction. In previous module, we have discussed about friction and resistance, right? Friction, that is a compare with the resistance. Friction क्या था? वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्या करता था, अपोज करता था. तो रेजिस्टेंस भी क्या है कि सर्किट में से जब करंट पास होता है तो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, राइट. When you rub your palm against each other, your palm become warm due to friction between the surface of your palm. जब आप दोनों हैंड के पाम को रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे जो पाम है वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा. Similarly, when electric current pass through a high resistant wire like nichrome wire, the electric energy is converted into heat energy that heat up the resistant wire. This is called heating effect of resistant. तो heating effect of resistant क्या है या heating effect of electric current क्या है? जब electric current पास होता है high resistant wire में से like nichrome wire, right? तो electric energy किस में convert हो जाती है, heating energy में, and वो wire को heat कर देता है, right? जो high resistant wire है उसको heat कर देता है. उस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, राइट. आई एम रिपीटेड अगेन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स जब करंट हाई रेजिस्टेंट वायर में से पास होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड वो हाई रेजिस्टेंट वायर को हीट कर देता है, राइट. उसको बोला जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक्टिविटी में हम देखेंगे टू शो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. For that you need two iron nail, thermocol sheet, copper wire, 10 cm long piece of nichrome wire, electric bell and switch. Method: take two iron nail and fix them at some distance apart on thermocol sheet. Take about 10 cm long piece of nichrome wire and tie between two nails. Nichrome wire can be obtained from electric repair shop या piece of discarded coil of electric heater made up of nichrome wire can be used. Make an electric circuit by connecting two nails to two terminals of electric cell through a switch by using a copper wire. Now, pass electric current in circuit by moving a switch on position. After few seconds, touch the nichrome wire just for a moment. आपको यहाँ पे सर्किट बनानी है, थर्मोकोल शीट लिए, उसके ऊपर दो आयरन नेल लगानी है, राइट. कुछ डिस्टेंस में, पास में नहीं रखना है. फिर जैसे हम सर्किट बनाते थे, ये वायर्स लेने हैं, राइट. यहाँ पे स्विच लिए, यहाँ पे सेल दिया है एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग निक्रोम वायर आपको लेना है. अभी क्या करना है, यहाँ से स्विच ऑन करनी है, राइट. सर्किट में से जब आप स्विच ऑन करोगे, आफ्टर फ्यू सेकेंड टच द निक्रोम वायर. जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा वायर लगाना है, निक्रोम वायर लगाना है जो हाई रेजिस्टेंट वायर है, राइट. जैसे आप यहाँ से स्विच ऑन करो तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको निक्रोम वायर को टच करना है. तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन, द निक्रोम वायर बिकम हॉट. ये वायर है वो हॉट हो जाएगा, राइट. डिस्कशन, ये क्यों हुआ, बिकॉज निक्रोम वायर बिकम्स हॉट because electric current passing through it heat up the nichrome wire. जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, बिकॉज यहाँ से पॉजिटिव एंड से होगा, निक्रोम वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा. यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीटिंग एनर्जी में, और वो निक्रोम वायर को हीट कर देता है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट.
The amount of heat produced in a wire depend on its length, material and thickness. कितना अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, मटेरियल एंड थिकनेस पे. Thus, the wire of different material, length, thickness are used for different purpose. इसलिए different high resistant का wire different material का use किया जाता है, different length के use किए जाते हैं and different thickness के use किए जाते हैं. आपका purpose कौन सा है उसके हिसाब से. Right. Next one हम देखेंगे application of heating effect of electric current. The heating effect of electric current has a many application in our everyday life. Everyday life में हम ये जो heating effect of electric current है ये application कई सारी जगह पे use करते हैं. Some of the important electric appliances which are based on heating effect of electric current are given below. हम जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सारे नहीं बट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो भी ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करता है. राइट, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा. कौन कौन से हैं वो हम अभी आगे देखेंगे. फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस. The electric heating appliances such as a electric room heater, electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, electric heater या geysers, immersion rod work on the principle of heating effect of electric current. इतने सारे जो appliances हैं, electric appliances हैं, वो ये principle पे work करते हैं, heating effect of electric current. Right. The electric heating appliances contain coil of high resistant wire. ये जो सारे electric heating appliances है, right, उसमें coil होती है जिसमें जो coil होगी वो कौन सा material की बनी होती है, high resistant wire की बनी होती है, right, जिसको बोला जाता है heating element. That is made up of nichrome alloy. और वो किससे कौन सा मटेरियल होता है, निक्रोम एलॉय. एलॉय मीन्स उसमें एक या एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होती है. निक्रोम के साथ आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम होता है. राइट, इसीलिए उसको निक्रोम एलॉय बोला जाएगा. राइट, तो उसको हीटिंग एलिमेंट भी बोला जाता है बिकॉज वो हाई रेजिस्टेंट मटेरियल है. राइट, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. When electric current is passed through an electric heating appliances, a large amount of heat is produced in the element due to which it becomes red hot. और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ये हीटिंग एलिमेंट में से तब वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. राइट, इसकी वजह से वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, रेड हॉट कलर का आपको दिखाई देगा. राइट, कभी भी आपने जो वाटर हीटर है वो कभी ऑब्जर्व किया होगा, उसमें जो कॉइल होती है वो इससे ही बनी होती है. वो जब आप उसको हीट इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तब वो गर्म हो जाती है, रेड कलर का आपको दिखाई देता है. राइट, वो इसीलिए होता है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपको रेड कलर का वो दिखाई देता है बिकॉज वो हाई रेजिस्टेंट वायर है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है इसकी वजह से. दिस हीट कैन बी यूज्ड एज अ डिजायर. फॉर एग्जाम्पल द हॉट इलेक्ट्रिक आयरन used for ironing cloth. The hot electric room heater is used for warming the room and hot electric heater is used for cooking the food. ये सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसमें हीटिंग एलिमेंट होता है जो निक्रोम एलॉय का बना होता है और वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब. An electric bulb या electric lamp used for producing a light work on the principle of heating effect of electric current. ये भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इट इज़ अ वेरी थिन एंड हाई रेजिस्टेंट फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल. आपने 6th स्टैंडर्ड में देखा ही है कि बल्ब में जो बीच में फिलामेंट होती है वो किससे बनी होती है, टंगस्टन मेटल से. राइट, when electric current pass through tungsten filament it get heated to very high temperature, becomes hot and start glowing. राइट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा टंगस्टन फिलामेंट से तो वो हीट हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे एंड वो गर्म होने की वजह से वो ग्लोइंग करना स्टार्ट करता है, वो लाइट इमिट करता है. राइट, इट गिव अस लाइट एंड हीट, तो वो हमें हीट एंड लाइट दोनों प्रोवाइड करेगा. दिस हीट इज एक्चुअली अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट जो हीट होती है आप बल्ब को टच करना थोड़ी देर के बाद तो वो गर्म हो जाता है बिकॉज हीट है. लाइट तो चलो हमारे लिए डिज़ायर है बट जो हीट है वो एक्चुअली वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो नाउअडेज LED एंड CFL का यूज़ किया जाता है. The wastage of electricity can be reduced by using a light emitting diode, that is a LED, and compact fluorescent lamp CFL for producing light instead of electric bulb.
They do not work on the principle of heating effect of electric current, और ये heating effect of electric current के principle पे work नहीं करता है. तो कैसे करेगा? They do not have filament, उसमें filament भी नहीं है. So do not waste electricity by producing heat, right? इसीलिए उसमें electricity का wastage नहीं होता है and heat produce नहीं होती है. They are very power efficient, right? वो power efficient भी है. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है. कॉपर फ्लोरोसेंट लैम्प एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब कंटेन मर्क्यूरी वेपर दैट टॉक्सिक इन नेचर. ये जो CFL है एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें मर्क्यूरी वेपर होते हैं, राइट? तो वो मर्क्यूरी आपको पता ही है कि वो टॉक्सिक है. देयरफॉर डैमेज ऑफ CFL एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब शुड बी डिस्पोज सेफली. इसीलिए कभी आप CFL जो बल्ब है एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसको अगर डिस्पोज करना है तो आपको सेफली करना चाहिए. Another advantage of LED and CFL is that they can fit in ordinary bulb holder. और दूसरा एडवांटेज क्या है LED and CFL का कि वो ऑर्डिनरी जो बल्ब होल्डर है उसमें भी फिट आप कर सकते हैं. So LED and CFL are initially more expensive to buy, but their running cost is much lower because they consume less electricity. They are very efficient and long lasting. स्टार्टिंग में जब LED एंड CFL का यूज़ किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब तो वो कॉस्टली था, बट अभी नाउअडेज वो कम चीपर है. कम इनिशियली बहुत ज़्यादा प्राइस में मिलता था, बट उसके कंपैरिजन में अभी थोड़ा उसकी प्राइस कम है. प्लस वो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम करता है एंड वो पावर एफिशिएंट भी है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है. बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यू शुड लुक फॉर ISI mark of Bureau of Indian Standard on appliances. ISI mark ensure that appliances is safe and wastage of electricity is minimum. कोई भी appliances जो electric appliances है वो आप purchase करो तो उसके ऊपर आप ISI mark देखना, पीछे की साइड होता है जिसको Bureau of Indian Standard बोला जाता है. इसका मीनिंग क्या है? वो ये दिखाता है कि ये जो electric appliances है वो safe है and electricity जो energy है electrical energy उसका wastage कम करता है, right? Next one है electric fuse. Electric fuse is a safety device that breaks the electric circuit when there is an excessive flow of current in the circuit. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ मीन्स इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जब सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा अमाउंट में पास होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, राइट? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कुछ नहीं होता है, राइट? अभी हम नाउडेज हम रेफ्रिजरेटर की जो सर्किट होती है उसके बीच में लगाते हैं, या भी नाउडेज हम MCB का भी यूज़ करते हैं. हम ऐसे बोलते हैं ना कि रॉबर्ट का भी यूज़ किया जाता है, वो गिर जाता है, पता है? स्विच नीचे गिर जाती है जब ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होता है तो, राइट? तो यही प्रिंसिपल पे वर्क करता है. It prevent the damage to electric appliances and possible electric fire. एंड वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचा देता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो, एंड जो उसकी वजह से आग लगती है उससे भी हम बच जाते हैं. एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. A fuse consists of piece of thin wire, generally an alloy of tin and copper, having a low melting point. It is always connected in series with the electric circuit. ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है उसमें क्या होता है? थिन वायर होता है, जनरली टीन एंड कॉपर का होता है, एलॉय ऑफ टीन एंड कॉपर, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एंड ऑलवेज वो सर्किट में इन सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. आपको पता ही है इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, राइट? When excessive current beyond the safe value flow in household circuit, जब household circuit में से beyond the particular appliances में एक safe value लिखा होता है तो उससे ज़्यादा जब current पास होता है the thin fuse wire get too much heated, melt and break the circuit immediately. तो जो फ्यूज़ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, उसका वायर है, वो क्या होगा जब आप सर्किट में लगाओगे इन सीरीज कनेक्शन में तो वो हीट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है और मेल्ट होने की वजह से वो वहाँ से ब्रेक हो जाता है तो सर्किट वहाँ पर ही रुक जाएगी, राइट? जिसकी वजह से अप्लायंसेस को कुछ भी नहीं होता है. The electric current stop flowing in the circuit and thus the damage to various electric appliances is prevented. When fuse wire get melt, it replaced by a new fuse wire to restore the electric supply in household circuit.
बट ये डिसएडवांटेज आप बोलो तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का वायर एक बार मेल्ट हो जाता है तो आपको नया वायर सर्किट में इंसर्ट करना पड़ता है। देखो आपको यहाँ पे फिगर दिखाई है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, नॉर्मल सर्किट है, इन सीरीज में कनेक्शन दिया गया है, बल्ब ग्लो कर रहा है। बट जब ज़्यादा करंट पास होगा, यहाँ से करंट जब पास हो रहा है तो यहाँ से जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और सर्किट यहाँ से स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो ये बल्ब को कुछ भी नहीं होगा, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट, डू यू नो एमसीबी के बारे में आपको दिखाया है। दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी आर increasingly being used in place of electric fuse. Nowadays electric fuse की जगह MCB का यूज किया जाता है। These are switch that automatically turn off when current in a circuit exceed the safe limit. safe limit से ज़्यादा सर्किट में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में ये यूज़ किया जाता है, राइट। वो ऑटोमेटिकली स्विच क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी जब ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होगा तब, राइट। MCB work on the principle of magnetic effect of electric current and not on the heating effect of electric current. ये जो MCB है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे वर्क करता है, बट वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे वर्क नहीं करता है। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। When the fault in the circuit has been set right, MCB can be reset इन ऑन पोजिशन, ठीक है। एक बार वो ऑफ पोजिशन में आ जाता है, राइट, वो नीचे गिर जाती है, तब आप रिस्टोर करके उसको फिर से ऑन पोजिशन में कर सकते हो, उसको नया रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। Thus, unlike the fuse that can be used only once and has to be replaced, but जब फ्यूज था तो उसमें क्या करना पड़ता था, जब वो मेल्ट हो जाता था, ब्रेक हो जाता था तो उसको नया रिप्लेस करना पड़ता था। बट यहाँ पे आप ऑन करोगे तो फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। Same MCB can be reset manually to restore electric supply. You should look for ISI mark on MCB so as to ensure that you buy only good quality MCB. Next one, causes of excessive flow of electric current. जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो दो circumstances होता है, short circuit and overloading. The extremely large current can flow in the household circuit under two circumstances, short circuit and overloading. So, short circuit उसमें क्या होता है, we use cables and wires in electric circuit. हम cables and wire का use करते हैं electric circuit में, right? This wire and cable consist of 3 wire. इसमें 3 wire present होते हैं, live wire, neutral wire and earth wire. A sudden flow of very large current due to direct contact of live wire and neutral wire called short circuit. सडनली ज़्यादा अमाउंट में जब सेफ वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में जब करंट पास होता है तब लाइव एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है। आपने देखा ही होगा, कलर कलर के पता है वायर होते हैं, रेड, येलो, ब्लैक, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के वायर प्रेजेंट होते हैं, राइट, मेन सर्किट में। तो शॉर्ट सर्किट में लीड टू फायर एक्सीडेंट, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन है ओवरलोडिंग। When too many electric appliances are connected to a single socket, they draw extremely large current from a household circuit. The household wire get off. देखो आपको यहाँ पे दिखाया है, सिंगल सॉकेट है, उसमें कितने सारे वायर्स लगा दिए, राइट। तो सॉकेट की भी पर्टिकुलर लिमिटेशन होती है, राइट। हम कितने सारे वायर्स यहाँ पे लगा देंगे तो उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्रॉन करनी पड़ेगी, राइट। तो ये अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा तो फायर एक्सीडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको ओवरलोडिंग बोला जाता है। तो ओवरलोडिंग या ओवरहीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इन एनी सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू it is called overloading of electric circuit. Overheating of electric wire in any circuit due to flow of large current, right। कोई भी सर्किट में ज़्यादा हम वायर्स अटैच सॉकेट में जो सर्किट होते हैं कनेक्टेड, राइट, उसमें ज़्यादा वायर्स कनेक्ट कर देते हैं तो ओवरहीटिंग हो जाता है, राइट। तो उसको ज़्यादा करंट ड्रॉन करना पड़ता है, राइट। तो उसको बोला जाता है ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्सेसिव ओवरलोडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड में लीड टू फायर एक्सीडेंट, और ज़्यादा कंटिन्यूसली ऐसा ही चलता रहेगा तो आग लगने के या फायर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वैसे जैसे मैंने एक बेंच रखी है, राइट, उसमें 3 पर्सन की बैठने की कैपेसिटी है। अगर मैं 5 लोगों को बैठा दूंगी तो आप कैसे झगड़ोगे,
राइट, बैठने के लिए। ऐसे ही होता है कि पर्टिकुलर सॉकेट में एक सर्किट होती है, उसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है, राइट। उससे ज़्यादा अगर हम लगा देंगे वायर तो उसको ज़्यादा करंट ड्रॉन करना पड़ता है, तो वो गर्म हो जाता है, राइट। तो उसको ओवरलोडिंग कंसेप्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे।